Come, sir. Sir, please. Please. Both you. Both of you. Both of you. Thank you, sir. Bhaskar sir, he is former MD of Maruti Udyog Limited, former chairman of all PSUs, and also former technical director of GMR Airport at New Delhi and other places. And also he is a patron of our Adi Leela Foundation. I request Shri Rajiv Jain sir, former Chief Enforcement Officer, Ministry of Textiles. Please come to the dais. And today is a great occasion because under the guidance of Dr. Madam Bhargavi and Dr. Venkat Reddy, both have basically they are the doctors and dentists and they run their own nursing home. But they have thought of using the natural fibers for the handloom and textile material, and both they have invited. I would like to invite Dr. Venkat Reddy, please come to the dais. Dr. Bhargavi madam, please come to the dais. I request Dr. Surendra Kumar. He was Director, Indian Institute of Handlooms and Textile Technology. He was Donor Director for the Weavers Service Center, and also he was associated with the and under his guidance, so many students they are working various multinational companies, so many places. Once again, I first invite the comments of the Adi Leela Foundation. As I am a founder of the Adi Leela Foundation, Dr. Adi Narayana and Dr. Leelavati. We are PhD scholars, not any medical. Due to the grace of God, we were blessed. Adi Narayana and Leelavati, and Adi means Bhagavan, is a creation only. So we made it as a Adi Leela Foundation, so that that will continuously taken in future endeavors also. Adi Leela Foundation established in 1994. Then it is registered and working initially in Delhi. Afterwards, it was worked in the NCR and Delhi. Slowly, it has gone to the all northern, southern, eastern and western states. At present, it is working on pan-India basis. 22 states working. The main basic principles of the foundation, only 6 things. One is national unity and integrity. Second one,
education. Third one, environment. Fourth, culture. Fifth, medical and nutrition. Finally, charitable activities. Under these 6 principles, yearly around 2 to 250 programs are being organized all over India. We have so many sister organizations also which are associated with not only in Delhi and NCR but also all over India. There are so many gentlemen who are here. They have gone to the different places along with the Adila Foundation. They have seen the activities of the Adila Foundation. I don't want to take much time. Thank you. You can see the website and social media. Now, I request our dignitaries who are on the dais and we will make the Jyoti President. Yeah, good afternoon, sir. आज नेशनल हैंडलूम डे है और आज आपका प्रोग्राम भी यहाँ पर हुआ है. क्या कहना चाहेंगे इस प्रोग्राम के बारे में? Yes, sir. First of all, happy National Handloom Day to everyone, to all the viewers. On this auspicious day, on this special day, I'm going to launch my brand Bananas. It's completely eco-friendly fabrics which are made out of sustainable fibers. It's banana fiber which we have processed and we have spinned, we have weaved and made nice garments out of them. Here we have displayed all the garments. You can just have a look at them also. These are completely sustainable and they doesn't cause any harm to skin or soil. सर, जिस तरह आज प्रोग्राम है आपने कुछ लोगों को सम्मानित भी किया गया है, तो किन किन लोगों को सम्मानित किया गया है आज यहाँ पे? Yes, sir. All the Padma Shri awardees and the people who have done their contribution for handloom. A few other dignitaries also are being awarded this day. So I feel it's an honor and privilege for me to honor them. सर, आज देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने हैंडलूम डे के ऊपर लोगों को आह्वान किया है कि जिस तरह फ्रेंडशिप डे मनाते हैं उसी तरह आप हैंडलूम डे मनाएं. क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? That will be very great because handloom is not only about weaving excellent fabric, it's about livelihood, it's about dignity. And so even I feel very proud that I have innovated some fabric. And I say that innovation and tradition has to go hand in hand. When these two forces join together, we can really create miracles. That's what. What's special about your fabric? You said you're making the banana fabric, Yes, no? sir. Other the cotton and the linen. What's special about it? Why I'm buying your product? Because when it comes to banana fabric, actually India is the largest producer of bananas. But what we do is we just throw away the pseudostem after the harvest is done. But within this pseudostem, there are very lustrous fibers which can be processed, as I said, and we can weave them also. But by this, not only we are creating a opulent fabric, we are generating a lot of employment to the rural women. Rural youth are also being benefited with this product. So I say innovation and this older tradition can meet and they can do wonders. Are they more expensive, the cotton and linen? No, sir. See, as of now, we are in a trial version. So when we go in bulk, we'll be able to cut down a little bit the cost factor. You are launching in Delhi as well. Now you have Hyderabad. You have the store. We have one store in Hyderabad. Okay. And in all the social media platforms, it's going to get launched in a couple of days. We are even planning physical stores also throughout the nation. Okay. So maybe God's grace, very soon we'll come out with flying colors. Thank you so much. Thank you, sir. Hope you're doing well. मेरा नाम शशि कौशिक है. मैम, आज क्या कहते हैं नेशनल हैंडलूम डे, जी. क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? नेशनल हैंडलूम डे पर कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन हम लोग एक बनाना करके एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि यहाँ पर आई है, इसको हम लोग लॉन्च करवा रहे हैं. और बहुत ही अच्छी बात है कि मोदी जी ने सुबह कहा कि हैंडलूम डे पर हम लोग इसको सेलिब्रेट करें और हम लोग की जितने रूरल डेवलपमेंट में जो अनएम्प्लॉयमेंट है, जो कि रूरल से जो गांव से लोग शहर की तरफ आते हैं, वो यहाँ पर ना आए और अपने रोजगार को वहीं पर प्राथमिकता दें और उसको बढ़ाएं उस चीज को.
और बहुत ही अच्छा लगा यहाँ की। और बनाना जैसी चीज़ से इस चीज़ को, और ये ऑर्गेनिक है, ये इससे हम लोग कपड़े बना रहे हैं और जो भी चीज़ें बना रहे हैं, देखिए बहुत ही सराहनीय है और यहाँ पर बहुत अच्छा लगा आके। थैंक यू। सर कहाँ से? दिल्ली से। अच्छा सर, आज हैंडलूम डे है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप? हैंडलूम का आजकल प्रचार बहुत हो रहा है और हैंडलूम बहुत ही ड्यूरेबल कपड़ा है अपना और इको फ्रेंडली है और ये घर में इसको बहुत लाइक करते हैं और इसकी महिमा अलग ही है। और जितने भी हमारे आर्टिजन्स हैं उनके लिए सरकार बहुत कुछ कर रही है और इसको हम बढ़ाने के लिए काफ़ी जी सर, आप सर हमारे डिप्टी डायरेक्टर भी रहे हैं खादी में जी 35 ईयर्स जॉब करा सर ने। या सेंट्रल गवर्नमेंट में रहे, फिर दिल्ली गवर्नमेंट से रिटायर हुए। इनके इनसे ज्यादा कोई नहीं जानता वो खादी में बहुत सर्विस दी है उन्होंने। आप क्या कहना चाहेंगे सर? मैं भी दिल्ली से ही हूँ। All the artisans, weavers, media partners, my dear friends and family, very good evening. And it's an honor and privilege for me to address this gathering on Handloom Day, and a very happy National Handloom Day to all of you. Handloom is not only just weaving the finest and fantastic fabrics, it's about preserving our heritage and dignity. So on this special occasion, I am very excited to introduce you all a new line of eco-friendly fabrics which are made out of sustainable fibers. I have chose banana fiber, and the team Bananas has extensively, vigorously done research for about 8.5 years, and we have weaved a masterpiece fabric. This I call it as masterpiece fabric because it shines like silk and it breathes like cotton or even linen. It even respects the nature because when it comes in contact with the soil, it just merges into it without leaving any harmful chemical footprints into our waterways. Basically, many of us don't know that within this banana pseudostems, there are strong lustrous fibers which we can spin and weave. So, Team Bananas, we have done a lot of research and tried to produce only organic fabrics out of this. The pigmentation, the colors what we have used are completely organic. So there doesn't cause any harm. And because of this surplus raw material availability, we can not only position this banana or sustainable fabrics. When these are placed properly, there is a chance that we can even monopolize this industry. Because nowadays this sustainable fabric, it's not only, it is not a luxury feature anymore. It has become a baseline requirement in textile industry. And there is a lot of employment generation this thing in our banana fabric industry, because starting from banana fiber extraction plants, for every extraction unit, there is a chance of creating 2 job opportunities. And likewise, in the processing plants, like in spinning, in weaving sector, there is a chance that there is a lot of employment regeneration. So this will help for rural development. Thank you all for coming and raising the occasion. Thank you. Thank you. Handlooms Day, and I'm really very happy and proud to be here introducing our banana fabric in front of you all at the capital city here. And handloom is not only a tradition, it also a combination of skill, sustainability, eco-friendly, and we are bringing this banana fiber into our handloom sector is a great achievement. I would like to thank Team Bananas for this. Yeah, thank you all.
Hearty congratulations to Dr. Venkat and team. Chief guest and dignitaries of the dais, dear viewers, media partner, and other ladies and gentlemen. On this National Hand Day, I congratulate first of all of you. And this date commemorate the Swadeshi movement, which was started on this day only, that is 7th August 1905. So in that movement we have adopted this Swadeshi, all these fabrics which are manufactured in India, we adopted that, and we discarded all the clothes which are made from outside or imported from outside. So I salute the skill and this creativity and dedication of the weavers, those who have developed the fabrics with the intricate design, which are very fascinate to our society and our Indian culture. This our handloom culture heritage is very rich and which is being appreciated all over the world, not only in India, because the weavers, they are weaving magic in the fabric, and even dyeing is just like now this banana fiber which Dr. Venkata and Madam Madhvi, Madam has developed, is really a very sustainable fiber, eco-friendly. It is next to the skin you can wear, you will not have any problem. It will not create itching, so it is good for the skin also. Moreover, the beauty is that they have dyed this fabric with the natural colors. And this handloom day was started in the year 2015. So congratulations once all of you once again. Thank you. को मेरा नमस्कार। यहाँ बैठे उपस्थित सभी मित्रगण और साथियों को और खासकर व्यूअर्स साथियों को भी मेरा नमस्कार। मैं हिंदी में इसलिए बोल रहा हूँ, मैं समझता हूँ कि हम सब हिंदी तो कम से कम समझ ही सकते हैं। अच्छा, मैं सिर्फ दो शब्द ही कहूँगा। एक तो मेरे देश में वीवर्स की हालत जो है वो बहुत चिंताजनक रही है और वीवर्स की संख्या भी कम नहीं है। आज से 4-5 साल पहले जो आंकड़ा हमारे सामने था, लगभग 30 लाख वीवर्स थे, और जिसमें अब वो संख्या dwindle करती हुई, क्योंकि उनकी जो प्रोजनी है वो दूसरे एम्प्लॉयमेंट में जा रही है, जिससे उनकी संख्या भी बढ़ती जा रही है। और वीवर्स के सामने समस्या ये रहती है कि वो दिन रात मेहनत करते हैं और मेहनत करने के बाद भी उनको उनका जो रेम्यूनरेटिव प्राइस है वो प्रोडक्ट का नहीं मिल पाता है। एक इंस्टांस मुझे याद आता है, जब लुंगी जो मार्केट में सेलिंग प्राइस उसका 70 रुपीज होता था, तब ये जो हैंडलूम पर लुंगी बनाते थे वो लुंगी का जो प्रोडक्शन प्राइस ही करीब 140 रुपये होता था। तो इस प्रकार हैंडलूम पर बनने वाले जो प्रोडक्ट्स हैं उनका प्राइस थोड़ा सा मार्केट से ऊपर रहता है, तो उसको मार्केटिंग की एक समस्या रहती है, जिसमें सरकार सदैव साथ खड़ी रही है और उसको मार्केटिंग में भी हम असिस्ट करते रहे। और उसके बावजूद भी हमारा जो वीवर बंधु है वो प्रोडक्ट्स के डाइवर्सिफिकेशन में, चाहे साड़ियाँ बनाए, चाहे चादर बनाए, टॉवल्स बनाए, कोई भी प्रोडक्ट बनाए, रेम्यूनरेटिव प्राइस न मिल पाने की वजह से उसकी स्थिति, जो आर्थिक स्थिति वहीं की वहीं रहती है। And
happy national handloom celebrations which are going in total entire India. On this auspicious occasion, Al-Leela Foundation is a renowned organization which Sai Narayana sequentially evolved with the Chayalita shirt only, handloom shirt only. That shows his commitment towards the handloom sector. And with the help of the Dr. Venkat Reddy and Dr. Bhargavi, उन्होंने दोनों डेंटिस्ट डॉक्टर्स हैं. मेरे भी अब तक समझ आया डेंटिस्ट से इसी किया ऐसा कैसे टर्न हो गए, मगर इट्स ए न्यू इनिशिएटिव विद द बनांज they are going to produce midway in the concept of the Make in India. And handloom is useful for all, organic, not irritative, no skin infestations. Since a long time our elders also, they wore the handlooms only. We see the Rishi, Munis and all the old saints, or even gods also they used to wear the handloom sector only. On this auspicious occasion, the loom handloom is a loom powering entirely by fixed fingers, hands and feet without any electrical or mechanical assistance. इसमें आपको बोले जैसा इलेक्ट्रिक का काम नहीं रहता और मैकेनिक काम रहता, मगर एम्प्लॉयमेंट ज्यादा क्रिएट कर सकते. और handloom, different varieties now we are purchasing in different sectors, different states also. For example, a classification देखे तो a fabric और regional handlooms में देखे तो उत्तर प्रदेश में बनारस है, जैसा तमिलनाडु में कांचीपुरम और मध्य प्रदेश में चंदारी, ऐसे उड़ीसा, तेलंगाना, गुजरात में इकत गया था, और जमदारी वेस्ट बंगाल, also in Telangana, Maheshwari in Madhya Pradesh. Like that in all states में विभिन्न क्षेत्र में भी ये फैब्रिक विभिन्न रूप से अपन खरीद कर दे, अपन डाल दे, और कंपेयर विथ अदर मटेरियल those we see in the showrooms, and now almost all companies also entering in the saree business. The same saree they prepare here and they export to other countries. वहाँ पर क्या करते, एक लाइन मार के वो कंपनी लगा के अपन को बेच देते, अपन ऐसा टाइप पे वही लेते अपन. इसलिए by seeing the concept, Dr. Bhargavi, Dr. Venkat Reddy with a good technology, because सरकार भी अभी लगे जो स्पेशल एक सेल भी लगा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, और टेक्सटाइल पार्क भी उद्घाटन कर लिए. लगभग अभी 11-12 टेक्सटाइल पार्क्स भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस्ड on the occasion of the textile day last, I think, Honorable Prime Minister Modi ji. In the Telangana also one textile park opened in Warangal. That is a nearly extent up to 2000 एकड़ में टेक्सटाइल पार्क भी लागू कर दिए. खासकर इसमें जो सब लोग बोले, आप देखे होंगे डेमोन्स्ट्रेशन में, ऑर्गेनिक है और हैंडलूम भी इस्तेमाल करना. हैंडलूम भी इस्तेमाल करें तो अपना पूर्व वैभव भी आते. Those who attended here, and congratulate to all the members and congratulate to organizers and congratulate to Al Narayan, Dr. Bhargavi, Venkat Reddy for today launching of this banana handloom. I wish the business will grow maximum, and because it is a natural one and organic one, everyone should care and everyone should love.
वैसा परिस्थिति आना देश में बोलते हुए मैं आपसे धन्यवाद करते देता हूँ। प्रणाम सबको नमस्कार। बहुत सारे हैंडलूम वीवर्स, टेक्नोलॉजिस्ट, एंटरप्रेन्योर्स, प्रोफेशनल्स को फैसिलिटेट कर रहे हैं। आप में से कितने लोग वीविंग कम्युनिटी से हैं? मतलब बुनकर समाज से कितने लोग हैं वीवर्स? अच्छा, चलिए, बहुत अच्छा है कि आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि मैं खुद वीविंग कम्युनिटी से हूं। हमारे यहाँ दक्षिण भारत में बहुत बड़ा कम्युनिटी है, पद्मशाली कम्युनिटी है ना। मैं उस कम्युनिटी को बिलोंग करता हूं। और दक्षिण भारत से लेकर उत्तर भारत तक अगर आप देखेंगे तो पद्मशाली, पट्टुशाली, कवटवीर, क्षत्रिय, देवांगा, और मध्य भारत में आए तो कोष्ठा, कोष्ठी, और पूर्वी भारत में जाएंगे तो तंतुवाई कम्युनिटी, तंतुवाई। इस तरह से पूरे देश भर में मैं समझता हूं कि बहुत बड़ा अगर कोई समाज है, और जैसे हम लोग बात करते हैं कि जब से इंसान ने किसी संस्कृति को अपनाने का प्रयास किया, यानी कि इंसान जो है जो बिना कपड़े पहने वहां से लेकर किसी संस्कृति या सांस्कृतिक रूप से अगर उसका उद्भव हुआ है तो वो कपड़ों से हुआ है। मतलब पहले कपड़े अपने शरीर के ऊपर ओढ़ने का प्रयास किया है, तब से जाकर वो इंसान बना है। उससे पहले वो एक जानवर था, जैसे हम समझते हैं। तो जानवर से इंसान बनाने की जो प्रक्रिया है उसमें अगर किसी समुदाय का सबसे बड़ा योगदान है तो वो बुनकर समाज का है। ऐसे बुनकर समाज के हम पूरे भारतवर्ष में ही नहीं, हमारे अगर हम देखेंगे तो आज का जो दक्षिण आसिया है, यानी कि अगर हम देखेंगे तो बलूचिस्तान से लेके पाकिस्तान से लेके नेपाल, भारत, श्रीलंका, बर्मा तक अगर हम देखते हैं तो ये जो वीविंग कम्युनिटी एक जैसा है, क्योंकि ये पूरा अखंड भारत जो रहा है। तो आप जाएंगे आज भी उसी तरह से जीवन यापन करते हैं। और जिस तरह से अभी बताया गया कि जो ओरिजिनल वीवर है, जो बुनकर है, वो तो कुछ नहीं कमा पाता है। जो कमाता है तो उसके ऊपर जो मार्केटिंग करता है। और अभी हम देख रहे हैं कि ओरिजिनल बुनकर जो छोड़कर और समाज के लोग भी आ गए हैं, वो भी बुनकर का काम करने लगे हैं। और हैंडलूम से लेके अब पावर लूम्स जो आ गए हैं, और पावर लूम से लेके उसके आगे और कुछ भी आने वाला है। बहुत कुछ नए जमाने के टूल्स भी आ गए हैं। बट अगर हम देखेंगे तो जो कला है इसमें, मतलब हैंडलूम जिसमें हम देखते हैं जो ताना बाना वाला जो एक सिस्टम, इसमें हम सब उस ओरिजिनल सिस्टम को जो है, मैंने समझता है कि अगर मान लो मोटा मोटा भी जो है 2000 साल 3000 साल पहले, या फिर हमारा जो हड़प्पा सिविलाइजेशन है, हड़प्पा का जो हम बात करते हैं, सिंधु नागरिकता की जब हम बात करते हैं तो सिंधु सिविलाइजेशन का जो उद्भव हुआ था 5000 साल पुरानी बात अगर हम कहेंगे, तो तब से जो है यही ताना बाना चल रहा है। आज भी जो है पावर लूम आया, उसमें भी ताना बाना जुड़े हैं, उसमें भी जो है यही सिस्टम चलता है। उसको रिप्लेस करने वाला से कोई सिस्टम बन नहीं पाया है। एक फोटो खींचो पॉलिस के साथ। एक मिनट ओके सर, ये सभी चीजें। आज नेशनल हैंडलूम डे है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? आज नेशनल हैंडलूम डे एक विशेष दिन है। देश में साल के एक बार 2015 से अपना वो भारतीय जनता पार्टी मोदी काम किए थे दिन नेशनल हैंडलूम सेलिब्रेट करना देश में बोल के। और हम ये समय पे मोदी की विनती करते हूँ टेक्सटाइल पार्क को ज़्यादा सैंक्शन दिया गया है। वैसा तेलंगाना राज्य में भी
वरंगल में टेक्सटाइल पार्क सैंक्शन किया गया। इधर तेलंगाना राज्य में भी जैसे कोटा लक्ष्मण बाबू जी और अपना वो लोग बहुत प्रयास किया उसको आगे बढ़ाने के वास्ते और व्यूवर्स को आगे बढ़ाने के वास्ते। मैं मोदी साहब से विनती करता हूँ भैया तेलंगाना सरकार तरफ से वो जो GST रेज किया गया 1.5% तुरंत कम कर लेना और ये हैंडलूम बोर्ड और वीवर्स का जो अभी विकास के वास्ते घर का स्कीम लगाए थे वो लोगों को घर देना 10,000 15,000 सब्सिडी से और पावरलूम बोर्ड भी रीसेट कर लेना। वैसे नया मेक इन इंडिया बोल के अपना मोदी साहब का मन है, उन्होंने मन की बात में बोले थे और ज़्यादा लंबी भाषण भी किए थे। वो अपना मेक इन इंडिया से बनाने से आजकल डॉक्टर भार्गवी और डॉक्टर वेंकट रेड्डी बोल के खासकर तेलंगाना से आए थे, तेलंगाना से प्राचीन कर रहे वो लोग अभी शाल ऐसा क्वालिटी में ऑर्गेनिक कुछ नहीं आता, इसे स्किन इन्फेक्शन नहीं आता, इरिटेशन नहीं आता और अच्छा कोट भी है, सब लोग संसद भी ये ले सकते, संसद भी पहन सकते और अच्छा माहौल भी है। इसलिए मेक इन इंडिया अनुसार जो वेंकट रेड्डी डॉक्टर भार्गवी इसको आज उद्घाटन कर रहे हैं आज लीला फाउंडेशन के साथ से, ये इसको प्रयास करके मोदी साहब सरकार आगे बढ़ाना और तेलंगाना सरकार से जहाँ तक हम तो वहाँ पर उन्नति के वास्ते कोशिश करें। सर, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज हैंडलूम डे के ऊपर ये कहा है कि जिस तरह क्या कहते हैं आप फ्रेंडशिप डे मनाते हैं ऐसे ही हैंडलूम डे मनाया जाए, जनता से अपील की गई है। शिप डे बना सकते हैं उसको, मगर उसको तुरंत ये नेशनल खासकर नेशनल हैंडलूम डे वो वीवर्स के वास्ते क्या करना बोलना और क्या सब्सिडी देना और GST बढ़ा दिए, GST कम करना और ऐसा इससे पहले हैंडलूम बोर्ड था, पावरलूम बोर्ड था और गर्भ के साथ भी वीवर के कम्युनिटी दिया गया, वो सरकार रद्द किया गया। मैं मोदी से नम्रता से विनय से तेलंगाना सरकार तरफ से बात करता हूँ और रिक्वेस्ट करता हूँ, निवेदन करता हूँ और तुरंत GST कम करना, GST कम करके वीवर फैमिलीज को घर दिलाना स्पेशल से असिस्टेंट सेंटर से और अपना उनको पावरलूम्स के वास्ते हैंडलूम के वास्ते नवी प्रोत्साहन स्कीम देना और जैसा बनाने के से पूरा लाभ किया गया और स्मूथ का देखो ये रिफाइनरी है और स्मूथ है और ऑर्गेनिक है। आजकल कोविड होने के बाद सब लोग ऑर्गेनिक कर रहे, ऑर्गेनिक फूड खा रहे, ऑर्गेनिक चावल खा रहे, वैसे ऑर्गेनिक कपड़ा पहने तो भी देश का भविष्य के वास्ते उज्जवल रहेंगे। मोदी सरकार ये विनती की स्वीकार करती है। सर, एक मिनट सर, आज अलीला फाउंडेशन की तरफ से दिल्ली के अंदर बुनकर समाज और सभी लोगों को सम्मानित किया गया है, क्या कहना चाहिए इस बारे में? देखिए, हस्तशिल्प के लिए बहुत जरूरी है। हथकरघा पहले सब बहुत मान्यता करते थे, बट आज के दिन में लोग फैशन का दौरान या वेस्टर्न का नेचर में कई चीजों में अभी हथकरघा का कम होते जा रही है। इसको कम नहीं होना है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना है, रूरल डेवलपमेंट करवाना है और हथकरघा को प्रोत्साहन करना है। इसके लिए हम अपना फाउंडेशन की तरफ से एक नैतिक जिम्मेदारी लेकर के आज का एक कार्यक्रम किए और आगे भी बुनकरों के लिए और आज बनाना जो यार्न एंड फैब्रिक्स प्राइवेट लिमिटेड ने जो अनुभव अच्छा काम किया है उनको भी हम साथ दे करके आगे बढ़ने के लिए कोशिश करेंगे। सर, आज बनारस फैब्रिक की तरफ से एक प्रोग्राम रखा गया है और सभी बुनकर समाज के लोग और जो बुनकर तबके के लोग हैं सर उनको सम्मानित किया गया है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? सर, हमारा इंटेंशन है कि इनोवेशन एंड ट्रेडिशन दोनों हाथ और हाथ में चलने का है, दैट इज आवर इंटेंशन। सर, थोड़ा पीछे श्री VG परमार सर आप अभी क्या कर रहे हैं? संतोष फोटो क्या कर रहे हैं? प्लीज बैठ जाए।
इसमें फायदा नहीं सोलर में अच्छा हमने मेहनत करके उसको किसी तरीके से सभी आप लोग का सबका सहयोग रहा, सब किया, वो हमारा डिप्लोमा बच गया। के लिए आज भी ये सबसे पहले रहता है और लड़के के काम करवाते हैं। आशुतोष प्लीज कम। From IST Varanasi in 94. Then I did my post diploma in textile chemistry in 95, and MTech, BTech, and finally PhD on textile only. And at present I am working as an associate professor and chief operating officer NIFT New Delhi. डिग्री बच गया। Good, good. Thank you. शांतनु जी जनरल सेक्रेटरी। आज भी अपना सीधा इनके हाथ भाई अगर कुछ तो मिले नहीं गिरे। मैम सीधा खड़ा हुई। माता जी को हमारी तरफ से प्रणाम करिए, पैरों में हम प्रणाम कर रहे हैं, उनको बता दीजिए। इन्होंने भी बहुत मार्गदर्शन किया है। आइए आइए। अच्छा మాట్లాడమ్మా చెప్పు చెప్పు మాట్లాడు సార్ చెప్పమ్మా Basically, I'm from Vivek community. I did diploma in handloom technology from IHT Academy. I am associating with the Bananas brand right now. This is what हमारा कंपनी का 5 साल ही हुआ है। इसमें अभी हम जो लेडीज को जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के उससे समर्थ का ट्रेनिंग होता है वो भी कराए हैं बहुत सारे गाँव में। बहुत महिलाएं सरकार की सुविधा भी मिली है। समाज से मैं समाज से भी हूँ, मैं खुद भी गर्व भी सर भी मतलब सर साथ में अरे ताली बजाओ इनके लिए। encouragement means a lot to अभी मोमेंट जो भी बुनकरों के लिए काम करते हैं उनका भी सम्मान वैसे नहीं बुनकर के काम कर रहे हैं सर। सम्मान होना चाहिए। बहुत और इसके लिए काम आदि तरफ से मैं ऐसे ही काम करता रही। बहुत बहुत बधाई। सर साहब तो सर कॉम्पिटिशन आज के नहीं सर 30 साल का एसोसिएट है साहब तो सर साथ मार गए। हाँ बारह मैडम प्लीज रहना माँ प्लीज। हाँ Thank you. आप रोड 100 आउटलेट्स ओपन कर रहे हैं सर एग्रीकल्चर के लिए। और ये करीम नगर का और 15 तारीख से स्टार्ट करा अगस्त 15 से 100 आउटलेट्स इन करीम नगर सर ऑर्गेनिक में। बताओ आपको बताओ सही में बताओ ना सर। सबको नमस्कार। आज हम सारी को मालूम है ना प्रोड्यूसर से और कंज्यूमर से बहुत फर्क रहता। हम बात कर रहे हैं कि प्रोड्यूसर को इनपुट कॉस्ट भी नहीं मिल रहे, उसका मार्केटिंग का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम रिटेल पार्क एक रिटेल ऐप बनाए जिससे हम किसान महिला और मैन्युफैक्चरर्स के लिए उनका प्रोडक्ट मार्केटिंग करने के लिए हमने कदम उठाया। और इस सिलसिले में हमें करीमनगर जिला में 100 रिटेल आउटलेट ओपन कर रहे जहां सीधे प्रोड्यूसर उस प्रोडक्ट को बेच पा रहे 0 कमीशन पे।
और हम विकसित भारत रूरल डेवलपमेंट के लिए 15 से 20 साल तक मेहनत कर रहे हैं और इससे आदिनीला फाउंडेशन डॉक्टर आदिनारायण सर भी उसी उम्मीद से है। सो हम देखिए, क्योंकि हमने मिलके हमारे देश की हर गांव की युवाओं की, महिला की और किसान की जो रोजगार कम हो रहा है उनका एटलीस्ट साल में 1 लाख रुपए ज्यादा इनकम आने का एक प्लान बनाएंगे और प्लान बना के आज इम्प्लीमेंटेशन में है। और आप सबको हमने हाथ जोड़ के मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि देश की विकास आप लोग चाहते हैं तो हमारा देश की जितने भी स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्रेन्योर्स है, जैसे कि डॉक्टर रेड्डी ने एक नया इनोवेटिव लेके 10 साल मेहनत करके एक प्रोडक्ट लेकर आएगा। आज के 90% स्टार्टअप कंपनी इंडिया में फेल हो रहे हैं, उसमें से मेजर एक ही रीजन है, उसका प्रोडक्ट मार्केट में फिट नहीं हो रहा है। जहां जाने में, लास्ट माइल जाने में उसका कैश बर्न हो जा रहा है। तो हम उन लोगों को हेल्प करने के लिए हम खड़े रहे और आपको सबको भी हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इंडिया में जो प्रोडक्ट बनता है एटलीस्ट एक प्रोडक्ट भी आप साल में 1 बार खरीद के यूज करिए। थैंक यू वेरी मच। సార్ ఆర్గనైజ్ చేశాను సార్, ఆర్గనైజ్ చేశాను సార్. ఇందులో రండి ఇద్దరు జోరుగా తాళి బజेंगे इनके ऑल द बेस्ट సార్ చూడండి ఏమన్నా మీరు ప్రెజెంట్ చేసుకున్నారా లేకపోతే మార్కెట్లో ఆల్రెడీ డైలీ ప్రొడక్ట్స్ కూడా అంటే కంప్లీట్లీ ఆర్గానిక్ నిష్ కొంచెం నిష్ కమ్యూనిటీ ఉంటుంది లైక్ ఆల్ దీస్ बहुत है 5% है सर, 5%. थैंक यू. पूरा देश भर आते हैं मैडम. थैंक यू. आइए सर, मंत्री पांच बार राजा बाबा अपना चौहान संजय जी को पक्का बाज के साथ भाग गया वो भी. हो गया गजबंदी मैं दिखता हूँ ना, इनको टूटी में लगा मैं फोटो खींचने का. हो गया. थैंक यू सर. सच में बोलो, सच में बोलो. यस. जगदीश्वर जगदीश्वर फोन देना, फोन दो. मेडल कैसे देंगे? एक हैंड आ रहा है सर आप सर 1 मिनट सभी लोग डिनर लेकर के जा रहे हैं प्लीज. 1 मिनट सर 1 मिनट